Hello and welcome to Indian Talent Olympiad Topper Quiz Contest. आज भी हम एक नए बच्चे के साथ क्विज क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. The child that we are going to invite today has already given ITO Olympiad exam through her school and she is state level topper. जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में बताया है, as of now we are inviting students from Pune and around the city. But eventually we plan to spread it all across India. उसके लिए आप हमारी हेल्प कर सकते हैं. आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियोस को, इस शो को पॉपुलर बनाना है. एंड फाइनली इफ यू वांट योर चाइल्ड टू सिट ओवर हियर, फेस द कैमरा, बी कॉन्फिडेंट, इंटरैक्ट विथ मेनी पीपल अराउंड एंड ऑफ कोर्स विन कैश प्राइजेस, तो आप अपने बच्चे को ITO ओलंपियाड एग्जाम में पार्टिसिपेट कराइए. If your child tops the school, tops the state or national level topper होता है, then definitely we will be inviting your child to sit over here and participate. So today we have Shamika. She has been a state topper in 7th grade. अभी Shamika आप 8th में हो? Yes. Okay. So Shamika, can you say a big nice hi to our audience? Okay. And can you tell us about your school, your hobbies? आपको क्या अच्छा लगता है? My name is Shamika. I am studying in 8th grade and I am come from IT Jaisari school. And my hobby is to singing songs and playing bicycles. Shamika like singing. अभी तो क्विज की शुरुआत होने वाली है. जब आपकी नर्वसनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्या हम एक गाना सुन सकते हैं आपसे? ठीक है. Okay, Shamika is ठीक है, like she is confident. Yes. Good, Shamika. Today we will be asking 10 questions from you. Yes. ठीक है. And these 10 questions will be from GK, reasoning, English and maths. Yes. Yes. Now, if you face any difficulty in asking any question, you can pass that question. Okay. But you can do it only once. सिर्फ एक ही बार आप कर सकते हो. कुछ भी प्रॉब्लम आता है and take your time. कोई टाइम लिमिट नहीं है. Yes. आराम से सोचो, क्वेश्चंस का आंसर करो कॉन्फिडेंटली. Question number 1. What are Java, Perl and Fortran? A. Types of plastics. B. Computer programming language. C. Operating system. Or D. Types of coffee. Java, Perl and Fortran क्या हैं? प्लास्टिक मटेरियल के टाइप्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर्स में उसके टाइप्स हैं, या फिर कॉफ़ी के टाइप्स हैं? बी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. शमिका, ये आपने आंसर कैसे दिया? बिकॉज कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, बट क्या आपने ऐसा सुना है या किसी को यूज़ करते हुए देखा है? हाँ, मतलब हम स्कूल में जब टीचर्स को ओवरलोड काम हो जाता है तो हम टीचर्स की भी हेल्प करते हैं. कि जस्ट लाइक हमें जो फॉर्म्स फिल करते थे IT के स्कूल्स की तरफ से हमें फीडबैक देना था. अदर स्कूल्स को हमें फीडबैक देना था. अपने स्कूल को फीडबैक देना था. अपने स्कूल को आपको फीडबैक देना तो हमने था. हम 5 फ्रेंड्स थे, तो हमने वो ओनरशिप लेके हमने वो पूरा फॉर्म फिल किया पूरे स्कूल की. अच्छा, तो मतलब आपने एंथुसियाज्म दिखाया, टीचर्स से खुद बोला कि हम पूरे स्कूल का फॉर्म फिल करेंगे एंड फीडबैक देंगे. एंड यू वर ओनली लाइक 5 पीपल. एंड आई एम श्योर आपके स्कूल में बहुत बच्चे होंगे ना? 5th, 6th, 7th, 8th. 5th, 6th, 7th, 8th, 4 classes and at least in one class like 30-40 students, 30-35 students. So that is great work. And see, we always get to learn from kids also. They took ownership. They just went to the teacher and asked for work. And this is an inspiration for other kids watching this program. Yes. So, yes, you got the answer correct. It is B, programming languages. Question number 2 from Shamika is, name the scientist who invented Crescograph. A. Homi J. Bhabha. B. Sir Jagdish Chandra Bose. C. Meghnad Saha. और D. G.N. Ramachandran. इनमें से किस साइंटिस्ट ने क्रेस्कोग्राफ को इन्वेंट किया था? होमी जे भाभा, सर जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, G.N. रामचंद्रन.
Take your time, think about it, and remember you have an option to pass the question. Option number B. Option number B, Sir Jagdish Chandra Bose. So Shamika was a little confused in B and D, but finally she said B, and B is the correct answer. Good job, Shamika. Nice work. Let's move on to question number 3. Tabla was invented in which province of India? A. Gujarat, B. Punjab, C. Delhi, D. Goa. इंडिया के कौन से प्रोविंस में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तबला वो इन्वेंट हुआ था? गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में कि गोवा में? Option number A, Gujarat. ऑप्शन ए गुजरात इज व्हाट शमिका हैज आंसर्ड. शमिका, आपको सिंगिंग का शौक है ना? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का शौक है? No. नहीं. ऑप्शन ए गुजरात इज द करेक्ट आंसर. 3 on 3 is what Shamika has got as of now. Good. Let's move on to the 4th question. Which country won women's hockey gold in Tokyo Olympics 2021? A. Argentina, B. Netherlands, C. Belgium और D. Great Britain. कौन सी कंट्री ने वुमेन्स हॉकी में गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में? अर्जेंटीना, नीदरलैंड, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन. Do you follow sports, Shamika? Yes, I play rugby. You play rugby? Yes. मुझे लग ही रहा था आपका पर्सनालिटी देखकर. And also I go to taekwondo classes. You go to taekwondo classes. शमिका से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, मुझे इजी क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे. Option number B. Option B, Netherlands. And option B is the correct answer. Again, well done, Shamika. Netherlands won the gold in Tokyo Olympics in 2021. अभी तक शमिका ने कोई भी क्वेश्चन पास नहीं किया है. शमिका, बस मैं याद दिला रही हूँ कि आपके पास ऑप्शन अभी भी ओपन है. Coming on to question number 5. Name the tourist town of Chennai famous for its stone carvings. A. Badami, B. Haven, C. Mallappuram और D. भटकल. इनमें से कौन सी जगह जो पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है, टूरिस्ट को, जो कि चेन्नई में है और फेमस है पत्थर की कार्विंग्स के लिए? बदामी, हेवन, मल्लापुरम और भटकल. Option number C. ऑप्शन नंबर सी, मल्लापुरम. आपको घूमने का शौक है? हाँ. अच्छा, अभी तक कहाँ कहाँ घूमा है आपने? पुणे में या पुणे के बाहर? आगा खान पैलेस. आगा खान पैलेस इन पुणे. मैं पुणे में रह के अभी तक आगा खान पैलेस नहीं गई हूँ, बट यस, दैट इज इन माय बकेट लिस्ट, मुझे जाना है. ओके. एंड आउट ऑफ पुणे आप कभी कहीं घूमे हो? नो. अभी तो बहुत मौका है, बहुत टाइम है घूमने के लिए, एंड आई रियली विश आप काफी घूमो. C. Mallappuram is what Shamika has said, and C. Mallappuram is the correct answer, Shamika. Shamika has a nice smile on her face. अभी तक अच्छा लग रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ा? नर्वसनेस कम हुई? हाँ. Good. Question number 6 for Shamika. Choose the correct antonym of the given word. Dairy. Okay, this is the word, Shamika. Yes. What is the antonym of it? Gloomy, lively, stale or treasure? A. Gloomy, B. Lively, C. Stale या D. Treasure? Antonym, like, do you need the know the Opposite. meaning of? Yes, antonym of dairy. Option number A. Option A, gloomy. This is the first wrong answer that you gave, Shamika. The answer is B, lively. Question number 7 for Shamika. The speed of running water in hydroelectric energy is used to spin dash.
A. Atmosphere, B. Plate tectonics, C. Loamy soil और D. Turbine। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो या देखा हो, तो वहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो जनरेट होती है रनिंग वाटर से। वो किस पे पड़ता है, क्या चीज़ स्पिन होती है रनिंग वाटर से? एटमॉस्फेयर, प्लेट टेक्टोनिक्स, लोमी सॉइल और डी टर्बाइन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लोमी सॉइल। द करेक्ट आंसर इज डी टर्बाइन। ओके, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ज़्यादातर एनर्जी फॉसिल फ्यूल बर्निंग से आती है, एंड हम सबको पता है फॉसिल फ्यूल बर्निंग इज़ नॉट वेरी गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, है ना। उससे बहुत पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इट्स वन ऑफ द रीज़न फॉर इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, दीज ऑल आर मोर फ्रेंडली फॉर्म ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, एंड इसमें टर्बाइन का यूज़ होता है। Question number 8. It's logical reasoning question, Shamika. Oh, yes. The question is, Q is the son of P. X is the daughter of Q. R is the aunt of X and L is the son of R. Then what is the L's relation with P? A. Granddaughter, B. Grandson, C. Daughter और D. Nephew। Q P का सन है, X Q की डॉटर है, R है आंट X की और L जो है वो R का सन है। तो L और P का रिलेशन क्या है? L का रिलेशन P से क्या है? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, डॉटर या नेफ्यू? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, ग्रैंड सन। आपने दिमाग में सब कैलकुलेट कर लिया? शी इज गुड एट मैथ्स, बट आई think she is also good in logical reasoning because this is the correct answer. Well done, Shamika. Question number 9, and it is again from logical reasoning. Question is, in a row of 84 persons, Suja is 15th from the left side of the row and Paresh is 30th from the from the right side of the row. Find the number of persons sitting between Suja and Paresh. Option A 38, option B 39, option C 45 and option D 41. एक रो में 84 पर्सन्स हैं, सुजा 15th है लेफ्ट साइड से एंड परेश 30th है राइट साइड से। कितने लोग बैठे हैं सुजा एंड परेश के बीच में? 38, 39, 45 और 41। ऑप्शन नंबर सी 45। ऑप्शन सी 45 is what Shamika has said. Option B is the correct answer, which is 39. But well done. अभी तक आपके दो ही wrong हुए हैं out of the 9 questions that we have asked, and one more to go. Coming on to the last question for today, which is, name the method in which waste is burned in the absence of oxygen. A. Shredding, B. Pyrolysis, C. Scrubbing or D. Electrostatic induction. कुछ भी जलने के लिए जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट देयर इज अ मेथड जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज करके चीज़ों को बर्न करते हैं, वेस्ट को बर्न करते हैं। उस मेथड को क्या बोलते हैं? श्रेडिंग, पायरोलिसिस, स्क्रबिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लास्ट क्वेश्चन है और अभी तक आपने पास का भी ऑप्शन यूज़ नहीं किया है। कंफ्यूजन लग रहा है? इट्स ओके, आप पास भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी।
Option number D, electrostatic induction. The correct answer is option B, pyrolysis. That was great play by Shamika. She answered 6 questions correctly out of the 10 questions asked to her. For every correct answer, Shamika will be getting 500 rupees. So 6 into 500? 3,000. Shamika takes away 3,000 INR cash from this show today. Shamika, कैसा लग रहा है आपको प्राइज मनी जीत कर? I'm feeling very good because in 7th grade I also get scholarship. You got scholarship? Yes. कहाँ से मिला था scholarship? Olympiad. Through Olympiad, ITO Olympiad? Yes, maths. Acha, so maths. So how much amount in scholarship did 500. you get? 500. Oh, but that's fine because many Olympiads like scholarship भी नहीं provide करते हैं. Because I come in top 10. टॉप 10 में आई शमिका तो उसको स्कॉलरशिप भी मिला. सी वी डोंट नीड टू एडवर्टाइज फॉर दिस कि हम स्कॉलरशिप्स देते हैं. अ स्टूडेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू हु हैज ऑलरेडी गिवन द एग्जामिनेशन एंड शी सेड इट प्रॉम्प्टली लाइक ऑन हर ओन. अच्छा शमिका, एक लास्ट क्वेश्चन. Yes. जो बच्चे ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, Yes. आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो कैसे प्रिपेयर करें? आप अपना थोड़ा शेड्यूल शेयर करोगे क्या? Okay. First to 8 to 3 o'clock I am in school. हाँ, 8 o'clock to 3 o'clock आप स्कूल में रहते हो. 3 to 4 हम घर पे जाने के लिए लगते हैं. ओके, या मतलब 45 मिनट्स आजकल नॉर्मल है ट्रैवलिंग. हाँ, 45 मिनट्स माना. उसके बाद 30 मिनट्स का स्नैक्स और फूड्स समथिंग. और उसके बाद 1:30 hours ऑफ स्टडी. ओके, सो लाइक व्हेन यू रीच होम तो स्नैक्स वगैरह करते करते लाइक 5 बज जाता है. एंड देन यू अगेन 4:30-5 बज जाता है. एंड देन यू अगेन स्टार्ट स्टडीइंग. ओके, देन ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच आर टुडे लर्न वी इन स्कूल. स्कूल का एंड देन 1 hour ऑफ प्लेइंग. वेरी गुड. 1 hour And वेरी then- इंपॉर्टेंट. 7:30 को टाइकोंडो क्लास को. 7:30 ताइक्वांडो क्लास. ओके. एंड 9:30 को घर पे फिर से आके फिर खाना खा के फिर सो जाना. अच्छा, तो जो ये ओलंपियाड वगैरह में आप पार्टिसिपेट करते हो, इसके लिए कब वीकेंड पे एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हो, लाइक सैटरडे संडे, या उसी में कहीं ना कहीं जिस दिन स्कूल का होमवर्क कम है तो उस दिन एक्स्ट्रा पढ़ लिया? जब ओलंपियाड के एग्ज़ाम रहते हैं स्कूल वाले एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं हमारी. जो ओलंपियाड के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि तुम रुको स्कूल के बाद. अच्छा, और वहीं ये पे पढ़ाई करो. स्कूल Very के बाद nice. स्टे करो. और वो मैम बुक्स है ना ओलंपियाड की, वो सारे स्कूल ने प्रोवाइड किए. अच्छा, ये स्कूल जो के पास है स्कूल वो. के पास है ये जो ITO जो आपने पार्टिसिपेट किया, तो ITO की ही बुक्स हैं, राइट? ITO तो की. ओके, ITO people have provided the books to the school and I would really like to appreciate the school people कि वो बच्चों को स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके एग्जाम्स के लिए. So I would like to clap for you, Shamika, and also for your school for taking such efforts. Shamika, here is your prize money. Use it well, keep it securely, and participate again in the ITO exams. Yes? And come here. Yes. And this time, like next time, we want 10 on 10. Yes. Okay. This is me, Parnika Jaiswal Rai, your host, signing off for today. And this is Shamika, who wants to say bye to you. Bye.